everyone. Welcome to the Financial Tools. There are moments when you learn a lot from very, very great people, and you cherish that one day you will be sitting with them and doing an interview. Comes from a media background. Today, I'm very, very happy that the founders of Screener.in, both Ayush and Pratyush, are with me. I have learned a lot, especially from Ayush because I've been interacting more with him. And thank you, both of you. It's a privilege, it's an honor, and I'm very, very happy and delighted and actually more content that you both are here. And it's not a good thing only for me, but I'm sure that whoever will be watching this episode, it will give them immense learning in terms to learn the basic features of Screener.in, which has been a very, very, very powerful tool. At least I have seen how it has evolved in the last at least 5 years. Thank you, Varinder sir. Thanks for so kind words. Honestly, it's a privilege for us to be on this platform. I think what you're doing at Omkara Capital in this version, wherein you are putting all your energy, what all you have learned in all so many years, you are putting out to public. कि मतलब the kind of videos जो मिल रहे हैं आपके educational videos, I have really benefited. मतलब इतना अच्छा scuttlebutt, industry experts जो कुछ आप ला रहे हैं, it's amazing. Thank you so much. Thank you, Pratyush bhai. बिल्कुल सर. एंड आपको तो हम लोग कब से फॉलो कर रहे हैं. मतलब आई ऑलवेज रिमेम्बर कि मतलब कुछ भी होता है तो भैया से मतलब फर्स्ट इज यू. जैसे कि जब भी हमारा स्क्रीनर जब लॉन्च किया या हम लोग ने प्रीमियम लॉन्च किया, यू वर जस्ट कि मतलब फर्स्ट जो सब्सक्रिप्शन आना. I am the first guy, okay? I am the first official subscriber of Screener.in. Exactly. जैसे हम लोगों ने स्क्रीनर का प्रीमियम ओपन किया था, and we were saying कि पता नहीं कोई लेगा नहीं लेगा. First, I was the first. And your call came for the encouragement. So you're always really helpful and you encourage us a lot. But yeah, Ayush bhai or Pratyush, I have to ask you this thing. What is the recipe? What is the secret sauce कि आप लोग जवान रहते हो? जब भी मैं मिलता हूँ आप लोग, you both are same. बाकी जब भी देखो कोई सफेद बाल आता नहीं है आपके. बाकी मैं कब से आयुष भाई को मिला हुआ हूँ. I have never seen him aging. Same smile, same body, और पापा जी बन के, और प्रत्युष भाई पापा जी बनने वाले हैं. Congratulations on that. But no, why? How? आप लखनऊ में रहते हो यार, सब कुछ खाते पीते हो, फिर भी एज तो होते नहीं आप लोग. क्या सीक्रेट सॉस है? Go to his hair guy. Zoom filters आज के तारीख में. Chalo guys, let's focus on Screener, okay? Again, I should tell you that मैं जिससे भी मिलता हूँ, whoever I meet, they use Screener.in. I know everyone. आपने लोगों की लाइफ आसान कर दी है. I know for a fact that मैं एक बार सुनील सर से मिला था, सुनील सिंघानिया सर से, तो वो भी Screener.in पे थे. बोले यार बॉस मेरा काम आसान हो गया, मुझे वो ब्लूमबर्ग टर्मिनल पे या एज पे जाना पड़ता नहीं है, फिर पता नहीं कहाँ से क्या निकालो क्या ना निकालो, एक ही पेज में सब कुछ आ जाता है, मेरा काम आसान हो जाता है. And the good part is also that you keep on evolving the product, which is a great thing. It's not कि आपने एक product बना के रख दिया, but I think there are constant additions, constant, evolvement of the product which keeps on happening. Now, for this financial tools, now the reason why we are doing financial tools is clearly that इंडिया में इतने अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने अच्छे फ्री के प्लेटफॉर्म्स हैं, जो अगर किसी को किसी कंपनी के बारे में पता भी ना हो, और अगर उसमें वो 5 या 10 मिनट भी चला जाए, उसको एटलीस्ट उतना पता चल जाएगा कि ये कंपनी ठीक है कि नहीं ठीक है. आई विल नॉट से कि हाँ उसको इन्वेस्टमेंट वर्दी पता चल जाएगा, बट एटलीस्ट इतना पता चल जाएगा कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है. प्लस ये सब कुछ फ्री में मिलता है और इतना आसानी से मिलता है. Now, if you can explain us what is Screener.in, what's the reason why आपने Screener.in बनाया, कहाँ से ये थॉट आया, और एक कॉमन आदमी को जो ये एपिसोड देख रहा है, उसको क्या फायदा हो सकता है. आई विल रिक्वेस्ट यू कि जितना आप सिंपल भाषा में, हिंदी में भी बात करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, सो दैट एवरीवन बेनिफिट्स विद द यूज ऑफ दिस सुपर पावरफुल टूल व्हाट इंडिया हैज. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपने नीचे लिखा मेड इन इंडिया. Yeah. So
मतलब कई चीज की मतलब लोगों ने प्यार दिया, दैट इज बिग थिंग कि सब लोग फीडबैक देते हैं एंड दैट इज कॉन्टिन्यूअसली मतलब इम्प्रूविंग स्क्रीनर। सो मतलब कहाँ से वो डेवलप होता है रिगार्डिंग की स्क्रीनर कैसे बना, क्या कैसे हेल्प करता है। सो स्क्रीनर वाज मतलब हम लोग ने खुद के लिए ही बनाया था जब हम लोग ने चालू किया था अराउंड 2009 टाइम, कि कहीं पे 5 साल से ज्यादा का डेटा अवेलेबल ही नहीं था। हम जब किताबें पढ़ते, सिक्योरिटी एनालिसिस पढ़ी, किताबें पढ़ी, वो लोग 10 साल से कम डेटा नहीं देखते थे और यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। सो वी क्रिएटेड इट फॉर आवर ओन यूज कि हम लोग इसको कर सके एंड फ्रॉम दैट इट केप्ट इम्प्रूविंग कि उसके बाद धीरे धीरे नए फीचर्स आते गए, नए ऑटोमेशन करते गए और वो इम्प्रूव होता गया। इंसान को कैसे हेल्प कर सकता है इन फाइंडिंग गुड स्टॉक्स की, जो कई चीजें आज की तारीख में डेटा एक तो बहुत ज्यादा है। सो एक कोशिश की है कि सिंप्लीफाई करे, हर जगह पे 100 चीजें अवेलेबल होती है, सो वी हैव ट्राई टू रिड्यूस इट टू 10 कि आधी से ज्यादा चीजें ना देखनी पड़े, कई चीजों को हम कैसे सिंपल कर सके, कैसे वो ओवरव्यू जल्दी पा पाए, कहाँ जाना है वो वहां पे पहुंच पाए। सो दैट इज एन अटेम्प्ट कि हम सिंप्लीफाई करते जाए उसको लगातार। And No, that's also, as we learn as investors, we keep adding small things. So I think in our presentation, we can start those parts and we can try to take the users through each section of yes, screener. yes, please, And please. let's keep it very basic so that somebody who is new to the website, how and where he should land on the website, where should he go. In that way, we will try to cover this session. प्लीज आप मॉडेस्ट मत रहिए, आयुष भाई और प्रत्युष भाई, आप बहुत मॉडेस्ट हो। आई कैन टेल यू वन थिंग कि आपने बिल्कुल सही बोला कि देयर आर मेनी बिग वेबसाइट्स, मनी कंट्रोल एंड ऑल। आई हैव सीन ऑल दोस वेबसाइट्स। इट्स सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन जिसका कुछ पता ही नहीं कि चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है ना। 50 एडवर्टीजमेंट चलती होती है, डेटा चल रहा होता है। स्क्रीनर एज अ यूआई, यू नो द यूजर इंटरफेस जो हम बोलते हैं, इट्स सो नीट, सो क्लीन जो आप लोगों ने बनाया। तो लेट्स ओपन द प्रेजेंटेशन, बिकॉज मुझे पता है आपसे ये सब चीजें अपने मुंह से बोलोगे नहीं। आप इतने ज्यादा मॉडेस्ट हो, यू नो, कि आप कंपैरिजन कभी किसी और के साथ करोगे नहीं। So I'll give this to you, okay? Sure, sir. तो सर इसमें मतलब जो हम लोग जैसे स्क्रीनर को भी हम लोग सोचते हैं, तो मतलब जो कॉमन सबसे ज्यादा क्वेश्चंस है, हमारी प्रॉब्लम हो चाहे किसी की प्रॉब्लम हो, 3 सबसे बड़ी लोगों के सवाल होते हैं। कि पहली चीज, कोई भी कंपनी उनको पता चलती है, वो पूछना चाहते हैं कि मतलब कंपनी अच्छी है या बुरी है, ये इस कंपनी में जाऊं या ना जाऊं। दैट इज लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सेकंड कॉमन प्रॉब्लम होती है कि हम आइडियाज कहाँ से लाए। हर इंसान कोशिश कर रहा होता है हमारे को फ्रेश अच्छे आइडियाज मिले। और थर्ड सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अच्छा खरीद लिया आइडिया, हमारे को पसंद आ गया, अब इस पे बैठे रहना है या निकलना कब है। बिल्कुल। ये 3 प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे को भी थी और सबको शायद जहां तक होती है। और इसी के अराउंड हमारे स्क्रीनर के भी 3 मेजर पिलर्स हैं। स्क्रीनर को अगर हम देखें तो इन 3 प्रॉब्लम के हिसाब से उसमें 3 मोटे मोटे भाग हैं। एक हो गया कंपनी पेज, जो हमारे को कंपनी अच्छी है बुरी है उसको जज करने में मदद कर सकता है। एक स्क्रीनिंग पार्ट है पूरा, कि अगर हम स्क्रीनिंग के थ्रू जाए तो वहां पे हम नए स्टॉक आइडियाज डिस्कवर कर सकते हैं। और तीसरा एक कोर पार्ट है स्क्रीनर का, ऑटोमेशन, जो कि आप अगर कंपनीज को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर दे तो आपको उसके बारे में सारे अपडेट्स मिलते जाएंगे। तो अगर कोई बिल्कुल ही नया है, अगर उसको हम यहाँ पे कहें कि 3 चीजें अगर आपको करनी, तो एक स्क्रीनर पे आप जाके रजिस्टर जरूर करो। फ्री का रजिस्ट्रेशन है, उसका कोई पैसा नहीं लगता। बट उसका फायदा क्या है कि वो आपके लिए सब कुछ कस्टमाइज कर देता है। स्क्रीन्स का एक इट विल रिमेंबर दी स्मॉल आपके अगर कोई कस्टमाइजेशन है वो कई जगह पे इट विल रिमेंबर, जो अभी हम लोग पूरी प्रेजेंटेशन में दिखलाएंगे। सेकंड चीज, स्क्रीन्स का एक टैब होता है, वहां पे अलग अलग स्क्रीन्स पहले से बनी है जिससे नए आइडियाज निकलते हैं। और उसमें एक टॉप पे एक बटन होता है, गेट अपडेट्स बाय ईमेल। वो एक सबसे सिंपल तरीका, अगर आप उस पर क्लिक कर दो तो आपके पास एक स्ट्रीम ऑफ इंफॉर्मेशन, स्ट्रीम ऑफ न्यू आइडियाज अपने आप फ्लो होने लगेगी। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किसी भी कंपनी पेज पे जाते हो तो ऊपर एक फॉलो का बटन रहता है। अगर आप कंपनीज पे फॉलो, जो कंपनीज को आप ट्रैक करना चाहते हो, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको एक बेसिकली उसके बारे में अपडेट्स मिलते जाएंगे, आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी कि क्या हो रहा है उस कंपनी में। बट इन 3 प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग का पर्सनल वर्कफ्लो क्या रहता है, उस पर हम लोग डिटेल पे आगे बात करते हैं। तो प्रतीश भाई, मुझे इतना सिंपल समझाओ कि मैं आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट स्टॉक मार्केट, ठीक है। मैं टीवी चैनल देख रहा हूँ, 2-3 महारथी लोग आए, उन्होंने बोला ये ले लो, 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 ठीक है। मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ, मैंने बोला यार ठीक है, ले लिया, ले लूँ, फंस गया तो क्या करूंगा। फिर मैं सोचता चलो ठीक है यार, एक बार थोड़ा देख लो कि कंपनी ठीक है कि नहीं ठीक है। तो उसमें मुझे स्क्रीनर जो फर्स्ट स्टेप है, लेट्स नॉट गेट इनटू सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेप।
तो उसमें मुझे स्क्रीनर सिंपल भाषा में कैसे दिखाएगा कि भाई ये ठीक है कि नहीं ठीक है, इतना तो देख लो। सो मेरे ख्याल एक वही की कंपनी का, जैसे हम कोई भी, आपने कहा कि कोई भी हम कंपनी पेज खोलते कैसे वो सही है नहीं, इसे हम कोई भी कंपनी खोलते तो स्क्रीनर उसके बारे में सब कुछ दे देता है उसमें एक सेक्शन होता है उसके बारे में, उसका चार्ट होता है, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, पीयर कंपैरिजन होता है, क्वार्टरली रिजल्ट की टेबल होती है, प्रॉफिट एंड लॉस की टेबल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, रेशियो, शेयर होल्डिंग डॉक्यूमेंट्स, So much of data is there on a single page. एंड पहली बार कोई भी आता है उसका मतलब जनरली यही होता है कि इसको पार्स कैसे करे, कि कैसे इसको भी सिंप्लीफाई करे, कि कैसे इसमें जाना चाहिए। तो कंपनी अच्छी है या बुरी है उसका मतलब एक जो फ्रेमवर्क है कि अगर हम एक बार में जज करने की कोशिश करेंगे कंपनी अच्छी है बुरी है, तो मतलब जनरली हम कंफ्यूज होते जाएंगे अलग अलग पैरामीटर्स में। तो 3 बकेट्स में उसको ब्रेक करना जनरली हेल्पफुल रहता है, और ये प्रोफेसर बख्शी सर ने सिखाया था हम लोग को कि बिजनेस, पीपल, वैल्यूएशन, 3 हिस्सों में कंपनी को अलग अलग इवैल्यूएट करो, कि पहली चीज बिजनेस अच्छा है या नहीं है, बिजनेस पैसा कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, लोग अच्छे हैं या नहीं है, लोग अपनी वेल्थ शेयर आपके साथ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, प्लस इतने स्किलफुल हैं कि वो कंपनी अच्छे से रन कर पाए। और तीसरा पार्ट आया कि वैल्यूएशन आपके फेवर में है या नहीं है, आप जो रिस्क लेना चाहते हो उस रिस्क प्रोफाइल में फॉल करता है या नहीं करता है। सो इन 3 तरीके से अगर हम पेज को ब्रेक कर दे तो शायद हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एंड दैट इज वेयर कि when someone just lands on the screener website, then first thing he should do is just open a company name. सो अब यहाँ से अगर हम लाइव डेमो पे सीधे चले जाते हैं कि हम लोग क्या करते जब हम लोग किसी भी कंपनी के बारे में अगर हमारे को देखना, उससे पहले तो मुझे ये बताइए सर, ये प्री अकाउंट और जो दूसरा अकाउंट है जिसमें आप पैसे लेते हैं, दोनों में क्या फर्क होता है? शुड आई एज अ रिटेल इन्वेस्टर हु डजंट नो एनीथिंग, अगर मैं फ्री बना लेता हूं तो मुझे क्या कुछ मिलता है, और अगर मैं सब्सक्रिप्शन लेता हूं व्हाट एडिशनल थिंग्स आई गेट? सर फ्री मैं कहूँगा पहली चीज इसमें 3 तरह के हैं, 2 बकेट्स नहीं है, एक है अनरजिस्टर्ड, एक है रजिस्टर्ड, और एक पेड में इंसान को जरूरत ही नहीं पड़ती। 99% केसेस में लोगों का काम खाली फ्री, यहाँ तक कि हमारे साइट पे अगर 100 लोग आते हैं तो खाली 25 ही होते हैं जो जहाँ तक कि जाके आगे अकाउंट भी बनाते हैं। 75 लोगों को तो अकाउंट बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जो 25 बनाते हैं उसमें 1% इंसान जाके हो सकता है 2-3 साल बाद खरीदने की उसको जरूरत पड़ती है। सो इसका भी लॉजिक जो हमारा रहा है कि हमने काफी चीजें इसमें फ्री में रखी है, क्योंकि हमारा मानना है कि मतलब हम लोग ने बहुत बेनिफिट किया है, हम लोग को पर्सनली स्टॉक इन्वेस्टिंग से काफी ज्यादा हेल्प हुई है। हम लोग को लगता है कि इससे अच्छा कोई काम नहीं हो, हम लोग चाहते हैं ये चीज फैले। और जब हम लोग सोचते हैं फैले तो मतलब ये अच्छे टूल्स हर एक के पास होने चाहिए। अगर कोई कॉलेज का स्टूडेंट है उसको 10,000 का, मान लीजिए 10-20,000 का ही खाली पोर्टफोलियो, तो वो 5,000 रुपया नहीं पे कर सकता। वो 5,000 क्या, वो कोई भी अमाउंट शायद नहीं पे कर सकता। उसके लिए कोई भी अमाउंट अगर वो पे करेगा, 100 रुपया पे, दैट विल इम्पैक्ट हिज रिटर्न्स। सो दैट इज वेयर आई एम ऑलवेज फर्म बिलीवर कि जो बेसिक अच्छे टूल्स है, जो इंफॉर्मेशन है, वो सबके पास होनी चाहिए। No, no, I understand. I really respect that, but I'm just saying that what benefit I get if I say register or I go for the paid one? Is there a difference or not? So in the paid version it will allow you more usage. जो हमारा प्रीमियम का दायरा है that is around usage, कि आप कितनी नंबर ऑफ कंपनीज ट्रैक करते हैं। और अगर आप 50 कंपनी से ज्यादा ट्रैक कर रहे हैं तो आपको पेड जाने की जरूरत पड़ेगी। या फिर कुछ बहुत ही ज्यादा एनालिटिकल फीचर्स है जो जनरली लोग यूज ही नहीं करते, तो कुछ जो मतलब जब हम लोग प्रेजेंटेशन के दौरान देखेंगे कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो जनरल लोग को नहीं चाहिए, वो सब चीजें उसमें आ जाती हैं। Okay, so this is the first landing page or screener or राइट। और जो आपने कहा कि फ्री और अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड में क्या अंतर है, तो रजिस्टर्ड के लिए सारी चीजें सेव होती जाती हैं। मतलब आप जो इसमें चेंजेस करोगे, जो अभी हम दौरान दिखलाएंगे प्रेजेंटेशन के, आपकी प्रेफरेंस सेव हो जाएगी, तो वो पन्ना आपके हिसाब से दिखेगा। exactly got it. मैं सब alerts रख सकता हूँ अपने लिए, right? मतलब not only using that is not safe, basically जो आपके कस्टमाइजेशंस है, मतलब somewhere you want some ratios कि मेरे को टॉप पे ये रेशियो दिखने चाहिए, तो वो आपके लिए सेव होता जाएगा। ऐसे ही आप अपनी एक्सेल टेम्पलेट्स कस्टमाइज कर सकते हैं। वो टाइप के जो कस्टमाइजेशन है वो रजिस्टर्ड यूजर्स को ही मिलेंगे। और आप मतलब वो स्मार्ट, अगर बेसिक लेवल पे देखें, बिल्कुल ही जो अनरजिस्टर्ड है उसको खाली इंफॉर्मेशन दिखती है। जो रजिस्टर्ड है उसके लिए स्मार्टनेस और ऑटोमेशन आ जाता है।
मेल्स एक अंडरस्टैंड। अच्छा, ये सारी की सारी जो कंपनीज नीचे लिखी हुई है सारी आयुष भाई की कंपनीज हैं, मतलब जितनी दिख रही है नाम, राइट? ये सारे नाम उनके ही आ रहे हैं। जैसे पॉलीमेडिक्योर एक हम लोग उठा लेते कि जस्ट कि कैसे कंपनी को एनालाइज कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं। So this is the basic company page. कभी भी किसी को कोई कंपनी का नाम मिले, first thing you can do, just type in the name, and at the top we will show you the basic numbers. This is कि market cap क्या है, आज इसका P ratio क्या है, book value क्या है, stock market price क्या है. Then there is a basic chart. But I would say कि अगर पहली चीज किसी यूजर को करनी है तो he should straight away go to the P&L. सबसे important जो हाँ स्नैपशॉट अगर किसी को आपको देखनी है टू स्टार्ट विद, सो हम लोग भी जनरली जैसी कंपनी पेज पे लैंड जनरली P&L पे जाते, बट आई विल जस्ट स्क्रॉल थ्रू ऑल द अदर सेक्शंस आल्सो कि है क्या क्या। सो एक टॉप इंफॉर्मेशन आ गई, एक चार्ट का आ गया, प्रोज एंड कॉन्स मोटे मोटे आ जाते हैं कंपनी के बारे में, एक पीयर कंपैरिजन आ जाता है, क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाते हैं पिछले 12 क्वार्टर, और 12 साल का एक पूरा ट्रैक रिकॉर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, रेशियोज, 12 साल में शेयर होल्डिंग कैसे चेंज हुई। किसी पे क्लिक करेंगे तो इंडिविजुअल नाम पता लग जाएंगे, नाम के अंदर क्लिक करेंगे तो उसकी अदर शेयर होल्डिंग मिल जाएगी, और प्लस उसके काफी ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स। वाह वाह। इसमें जो सबसे पहला काम जनरली हम लोग जो सबसे ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं, तो जैसा हमने कहा कि बिजनेस पीपल वैल्यूएशन 3 हिस्सों में हमारे को देखना है। और ये सब कुछ फ्री में है, मतलब इतना Exactly. डेटा जो आपने बोला कि लास्ट 12 क्वार्टर, 12 साल, शेयर होल्डिंग पैटर्न, क्रेडिट रेटिंग, एवरीथिंग, बीएससी एनएससी अनाउंसमेंट, एवरीथिंग इज ऑफ फ्री। Exactly. आई कांट बिलीव दिस। ओके, सीरियसली, अगर आप इन्वेस्टर हो और अगर आपको कुछ भी करना है, मगर इतना सिंपल इंटरफेस चाहिए, आई हैव नो रीजंस कि आप लोग क्यों नहीं स्क्रीनर यूज कर रहे हो, जहाँ पे आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन इतने सिंपल तरीके से, इतने प्यारे तरीके से फॉर्मेट में इन दोनों ने दी हुई है आपको। कूडोस टू यू बोथ ऑफ यू, सीरियसली। सो बिजनेस पीपल वैल्यूएशन जैसा हमने कहा कि उस तरीके से, तो जैसे मतलब हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन रहता है कि बिजनेस कैसा है, कि इस कंपनी का बिजनेस अच्छा है या नहीं है, एंड उसके लिए मतलब 12 साल का ट्रैक रिकॉर्ड टेल्स अ लॉट कि बिजनेस कैसा है। like Warren Buffett से पूछा गया था कि how do you go about analyzing companies, and he said history is almost everything. तो why is this important? 10 year 12 year is a picture जिसमें कंपनी एक बिजनेस साइकिल से जा चुकी होती है, ऊपर नीचे, कब खराब हुआ, अच्छा हुआ, हर बिजनेस में उतार चढ़ाव आएंगे। एंड ये जो स्नैपशॉट है, मतलब जहां मैंने देखा कि यार 100 करोड़ से ऑलमोस्ट somebody has done 700 करोड़ टर्नओवर in 10-11 years, तो यार बहुत अच्छा कुछ किया है। एंड दैट इज वेयर यू कैन वी हैव डन दी स्मॉल बॉक्सेस जहां पे आपको ये स्नैपशॉट दिख जा रहा है। 10 year CAGR sales growth is 18%, 5 year 12%, 3 year 15%. तो here's the company जिसमें एक बहुत ही कंसिस्टेंट ग्रोथ रही है ओवर अ लॉन्ग टर्म। तो आपको कुछ फ्रेमवर्क्स बनाने, मतलब पहली बार जब आप कोई कंपनी खोलोगे तो ये डेटा आपको क्या बता रहा है, यहाँ पे एक आपको कंसिस्टेंसी दिख गई, सेल्स ग्रोथ की दिख गई। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कम्स टू मी पर्सनली इज द ऑपरेटिंग मार्जिन प्रोफाइल। जब भी मैं कोई कंपनी देख रहा होता हूँ तो व्हाट आई वांट टू सी इज कि कितनी हेल्दी मार्जिन प्रोफाइल रहे। बिकॉज अगर कोई कंपनी जिसका 4-5-7% मार्जिन है तो वहां पे क्या होगा, कभी रॉ मटेरियल बढ़ जाएगा, कभी घट जाएगा, एंड यू विल हैव बिग वेरिएशंस इन नंबर्स। एंड दीज आर जनरली स्पीकिंग मॉडल्स, मतलब दीज आर नॉट, मतलब देयर विल बी कंपनीज जो इसके अलावा भी बहुत अच्छा करेंगी, बट दीज आर द जनरल मॉडल्स दैट यू विल ट्राई टू लुक इनटू द नंबर्स की क्या हो क्या रहा है। एंड मतलब तो बिजनेस अच्छा है, तो मतलब मार्जिन्स आर ग्रेट, एंड सिमिलरली आरओसीज की, आरओसीज भी कि बिजनेस कितना जनरेट कर रहा है, कितना लगा के उस पर जनरेट कर रहा है, एंड दैट इज अगेन मतलब कि अगर 15% के ऊपर आरओसीज मिल जा रहे हैं, 15% के ऊपर ग्रोथ मिल जा रही है ओवर वेरी लॉन्ग टाइम, 15% के ऊपर मार्जिन से, मतलब दीज थिंग्स आर वेरी हेल्पफुल। एंड जनरली 15% का एक बैरोमीटर रहता है कि 15% के ऊपर क्या वो लंबे टाइम तक कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, बीट फॉर आरओसी, बीट फॉर ग्रोथ, आरओई, एनीथिंग। एंड आप ना एक्चुअली एक ऐसा कंपनी एग्जांपल लीजिए जो खतरे की घंटी हो, सो दैट पीपल अंडरस्टैंड। जैसे आपने बोला कि इसमें कंसिस्टेंसी है, तो आपको पता चल जाता है कि कंपनी ठीक है कि नहीं ठीक है, आरओसी अच्छा है, मार्जिन अच्छा है। बट देयर आर समटाइम्स व्हेन पीपल वांट टू सेव देमसेल्फ, राइट? आई डोंट नो वेदर द कॉम्पिटिटर्स या कोई भी ऐसा आपको लगे जहाँ खतरे की घंटी हो कि भैया क्यों नहीं यार, इस कंपनी को क्यों नहीं देखा, व्हिचएवर नेम कम्स टू योर माइंड। तो आई वुड से कि दूसरा एग्जांपल हम जैसे लेते हैं, IMFA ले लेते हैं, मतलब इसी नंबर्स में क्या आपको दूसरे टाइप के नंबर्स क्या दिखेंगे,
मतलब एक कंपनी होगी जहां आपको कंसिस्टेंसी दिखेगी, एंड आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ पैसा नहीं बनेगा, पैसा अलग अलग वजह से बन सकता है, अलग अलग टाइम साइकिल्स को पकड़ने से बन सकता है, बट जहां पे ये मैंने नंबर देखा तो मेरे माइंड में पहले क्या क्लिक करेगा, इन 10 years दिस कंपनी हैज जस्ट नॉट इवन डबल टी टर्नओवर विच इज लेस देन इन्फ्लेशन। तो अगर मेरे को अपना पैसा 15-20% कंपाउंडिंग चाहिए और किसी कंपनी में वो ग्रोथ ही नहीं आ रही है, तो आई नीड टू अंडरस्टैंड कि यार आगे कैसे ग्रोथ आएगी जिससे मेरा पैसा बन जाए। अगर सही है, कंपनी ग्रो नहीं करेगी तो पैसा बनना मुश्किल है। सही सेकेंड, है। अब आप इसके मार्जिन प्रोफाइल देखो, कभी 44, 20, 30, 20, 20, 18, 10, फिर 30, फिर 15, और ऐसी प्रॉफिट एंड लॉस में कभी 200 करोड़ प्रॉफिट, कभी 50 करोड़ पे आ जाएगा, कभी लॉस आ जाएगा, फिर 200 करोड़। तो दिस इज व्हाट अ सिक्लिकल बिजनेस यस, एंड what I'm trying to also say is कि for a retail investor what is more important कि जब आपको कोई नाम मिलता है तो हम इतनी रिसर्च भी ना करके लेकिन ये समझ पाए कि हमारा डायरेक्शन क्या है, मतलब वो कंपनी जैसे सजेस्ट की कि ये अच्छी कंपनी के पैरामीटर में है या ये टर्न अराउंड है। अब अगर जैसे अगर टर्न अराउंड है, सिक्लिकल है, तो हमारा प्राइस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे अलग टाइप की वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मे बी मार्केट कैप, डेट में देखना चाहूंगा फिर बैलेंस शीट में कि यार डेट कहाँ पे, तो यहाँ पे चलो डेट रिड्यूस हो रहा है, दिस इज अ गुड थिंग इन दिस सिक्लिकल कंपनी। तो कहने का मतलब आयुष भाई कि अगर कोई नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर है जिसको स्क्रीनर आ रहा है पहली बार देखने के लिए, तो आप एटलीस्ट तीन चीजें पक्का देखिए। एक तो है आप P&L में जाके जो आपने 12 साल का दिया हुआ है उसमें सेल्स और प्रॉफिट देख लीजिए जी कि इसका सेल्स और प्रॉफिट लास्ट 12 साल से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, कंसिस्टेंट है कि नहीं है। तीसरा मेरे ख्याल में बैलेंस शीट में जाके एटलीस्ट डेट देख लीजिए। हाँ, एंड पीएनएल में आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट एक जो बॉक्स है दैट इज आरओई। हम्म, आरओई का ये जो कैप्चरिंग हो रही है ओवर 10 ईयर 5 ईयर, पहले क्या होता था हम लोग आज भी जैसे मैं देख रहा हूँ लोग आरओई पे बहुत फोकस्ड हैं, बट ये जो रेशियो टेबल पे हमने ओवर 10 ईयर हर साल की आरओसी दी है, ये भी खुद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब जैसे आप कोई भी अच्छा नाम उठा लें, आप कोई भी बड़ा नाम उठा ले, डिवीज उठा लीजिए, पीडीलाइट उठा लीजिए, डीवीज उठा हाँ, लीजिए, ठीक है। उनमें आप देखेंगे ओवर वेरी लॉन्ग पीरियड आरओसी इज वेरी वेरी हाई फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एंड सिमिलरली इनकी मार्जिन प्रोफाइल्स जब भी आप देखेंगे कंसिस्टेंसी मिलेगी। मतलब आई थिंक मार्केट में दो तीन टाइप के बिजनेस होते हैं, एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है सिक्लिकल, और तीसरे होते हैं सडन चेंज। मतलब जैसे गुजरात फेमस, सो थर्ड स्मॉल माइक्रो कैप में हम लोग कई बार क्या देख रहे होते हैं, ये कंपनी है विच इज ऑलमोस्ट डेड फॉर सो मेनी इयर्स, 15-20-30 करोड़ पे अटकी हुई थी, यहाँ पे अटकी थी, बट ऑल ऑफ सडन कुछ बड़ा नंबर चेंज हुआ। सो जब ये चेंज हुआ ना, आई हैव टू फोकस माय एनर्जी इन सीइंग कि व्हाट चेंज्ड हियर इन दीज 2 years। और इसके लिए हमने इसमें सेक्शंस दिए हुए हैं जहाँ एनुअल रिपोर्ट है, क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट है, सो यू हैव टू जंप इनटू दोस ईयर्स। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर हमें जब भी एनालिसिस करनी है तो ये जो नंबर्स का चेंजेस होते हैं, हम कई बार जैसे कहा जाता है 10 years की एनुअल रिपोर्ट पढ़नी है, बट कई बार हमारे लिए ये भी यूजफुल होएगा कि हम कुछ फ्यू ईयर्स उठा लें जिसपे मेजर चेंजेस हुए एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई दोस हैपेंड। उस समय ऐसा क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट था कि इसने अच्छा किया। नाउ विल दैट एनवायरनमेंट गेट रिपीटेड? यस। इज देयर सम मेजर एक्सपेंशन? अब जैसे लेट्स कम टू बैलेंस शीट, मतलब जैसे कमिंग बैक टू प्रीवियस एग्जांपल जहां पे हम शुरू कर रहे थे, हम लोग का वन पेज पे पेज को डिजाइन करने के बहुत से रीजन हैं। हम लोग ने एक जो स्टार्टिंग में ध्यान दिया कि क्या होता है कि आपको जब आप ये नंबर्स देख रहे हैं, नंबर्स तो बहुत अच्छे हैं, कई बार ऐसे भी पास में होंगे कि ग्रोथ आ रही होगी, बट देन व्हेन यू कंपेयर इट टू बैलेंस शीट, दैट इज वेयर यू विल अंडरस्टैंड हाउ द ग्रोथ इज गेटिंग फंडेड। ग्रोथ पाना आसान है, बट कई बार कंपनीज क्या हो रहा होता है कि दिस इज वेयर द मैनेजमेंट क्वालिटी के क्राइटेरिया में आ जाएगा। अभी तक हम बिजनेस क्वालिटी जज कर रहे थे कि बिजनेस कैसा है, क्या ये ग्रो कर रहा है, अब हम आ जाएंगे मैनेजमेंट क्वालिटी में, ये जो ग्रोथ पाने के लिए इसने किया क्या। तो यहाँ पे इसके रिजर्व्स तो बढ़ते गए, बट डेट भी बहुत कंट्रोल में रहा। आज हमारा डेट इक्विटी रेशियो डिस्पाइट सो मच ऑफ ग्रोथ इज लेस देन 0.3 में भी। सही है। सेकेंड, कंपनी की इक्विटी है ये 6x12, यहाँ पे बोनस से बढ़ी है, 11x2 22, 22x2 44। यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो रजिस्टर्ड लॉगिन कर। सो यहाँ पे कुछ चीजों के लिए, जैसे इन सब चीजों के लिए हमारे को लॉगिन चाहिए होता है। अब हम वापस आते हैं। अब एक काम ने अगर आप लॉगिन बना दिया, देन इट इज मतलब कि जस्ट उसके बाद मतलब कुछ भी नहीं करना है, फिर तो वो याद रखेगा सारी तो चीजें। यहाँ पे दिस विल शो कि इसने कब कब बोनस दिया, 1:1 पहले दिया, सच ए लॉन्ग डिविडेंड हिस्ट्री। तो
you get to know कि this company has grown without raising money from market. And what I think is कि usually see companies कहाँ पे गलत होती हैं, कहाँ पे see one thing about a retail investor, जैसे आप भी कहते हैं कि हमें गलतियां avoid करनी है, सबसे important गलतियां कहाँ पे होंगी, जिन कंपनीज में बहुत डेट है, बार बार वो कैपिटल रेज कर रहे हैं मार्केट से, तो अगर ये दो तीन चीजें आप बैलेंस शीट पे ध्यान दे ले कि इसकी ग्रोथ फंड कैसे हो रही है, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये अगर प्रॉफिट्स आए ये बैलेंस शीट में फ्लो कहाँ कर रहे हैं, मतलब ये प्रॉफिट तो कमाया, यहाँ पे साफ साफ एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग ध्यान देते हैं, सेकंड इज द डिविडेंड पे आउट रेशियो. For a company which is doing so well, if he's paying out almost 20% of his profits, that's considered to be a very healthy sign. Despite this paying of money, is he able to invest into fixed assets of his company? यहाँ पे 100 करोड़ का ग्रॉस ब्लॉक आपका आज 400 करोड़ का हो गया. सही है. The company is continuously investing the money that is earning by rewarding shareholders also, and then by reinvesting into business, जिससे again फिर आगे growth आएगी. नहीं तो मैं एक चीज समझ गया, कि अगर मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ और टीवी पे किसी ने कुछ ना कुछ बोल दिया या मेरे कहीं ना किसी दोस्त से सुन लिया, किसी ने टिप दे दी मुझे, तो मैं आके एटलीस्ट 4-5 चीजें आपकी वेबसाइट पे देखूं पक्का. एक P&L में जाके, जैसे आपने बोला कि आपके जो ऊपर हेडर्स हैं और उसमें अलग अलग हेडर्स हैं, तो उसमें P&L में जाके आपने बोला सेल्स और प्रॉफिट, मगर मार्जिन जरूरी है, बट एटलीस्ट सेल्स और प्रॉफिट देख लो कि वह कंसिस्टेंटली बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, कहीं ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हो रही है, कंसिस्टेंट होंगे तो ज्यादा अच्छा होगा. तीसरा आपने बोला ये रिटर्न ऑन इक्विटी देख लीजिए, ये बॉक्स जो आपने बनाया हुआ है जहाँ पे एटलीस्ट 10% से ऊपर होना चाहिए, बिकॉज आप इतना जो कॉस्टिंग का कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है, तो 7-8-10% का जो होना चाहिए, उससे नीचे होगा तो अच्छी बात नहीं है. देन जो नेक्स्ट बॉक्स है बैलेंस शीट वाला है, बैलेंस शीट में जाके आप डेट देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि डेट बहुत ज्यादा हो, डेट ज्यादा बढ़ रहा हो, कंसिस्टेंट है 10 साल से फिर भी ठीक है, बट बहुत ज्यादा ना बढ़ रहा हो. देन आपने बोला कि आप रेशियोज में जाके आरओसी भी देख लीजिए. एटलीस्ट ये 5 चीजें देख लीजिए, लिख के रख लेते हैं कि ये 5 चीजें मुझे देखनी है. किसी ने कुछ बोला, किसी ने कोई स्टॉक बोला, मुझे कहीं से कुछ सुन लिया, एटलीस्ट मैं स्कीलर पे जाके ये 5 चीजें तो देख लूं, ताकि मैं उस 5 चीजों को देखने के लिए मेरे ख्याल में मुझे 5 मिनट भी लगेंगे नहीं, बट मैं किसी खतरे से बच सकता हूँ अगर मैंने इतना देख लिया. बिल्कुल, अगर हमने इतना कर लिया तो हमारे को एक आइडिया लग जाएगा बिजनेस क्या है, क्या इसका मतलब जो इसकी प्रोफाइलिंग है, क्या मार्जिन प्रोफाइल है, क्या ग्रोथ प्रोफाइल है, वो पता लग जाएगा. एक चीज अभी भी इसमें रह जाएगी कि लोग कैसे हैं. दैट इज ऑलवेज अ वेरी इंपॉर्टेंट लोग क्वेश्चन की लोग कैसे हैं. That's the second step. So exactly. That's the second. The first step, I think it's the most crucial, at least for 90% of the people who just invest hearsay. So I am trying to focus more and more on those 90% people कि अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कहीं से सुन के पैसा लगाते हो, तो आप प्लीज अपना 5 मिनट इन्वेस्ट करो, उससे आपका बहुत सारा पैसा बच सकता है. और ये 5 मिनट में 5 लाइन या 5 रेशियोज देख लो जो जरूरी है बस. And now to the second step जो आपने बोला, let's talk about how to assess the people. बिल्कुल. एंड फॉर पीपल मतलब मेरा जो यूजुअली रहता है कि मतलब डिविडेंड टेल्स अ लॉट कि मतलब पहली चीज में आया कि लोग मतलब उनका मेंटेलिटी है नहीं कि हमारे साथ शेयर करे, और दूसरा वो स्किल्ड है या नहीं है, तो उनका इंटेंशन है हमारे साथ शेयर या करे या ना करे. तो डिविडेंड पे आउट इज अ गुड इंडिकेटर अबाउट कि वो क्या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. कई कंपनीज होंगी जिनका खूब प्रॉफिट रहा होगा, ग्रोथ भी है, सब है, बट दे मतलब वो 5% डिविडेंड पे आउट भी नहीं देती है. वहां पे हो सकता है कि वो वेल्थ ना क्रिएट करे शेयर होल्डर्स के लिए. और डिसेंट डिविडेंड पे आउट एक मतलब इंटेंशन शेयर करता है कि हाँ वो कर रही है. सेकंड होता है कि जरूरी नहीं कि हर मतलब जो अगर बहुत अच्छी ग्रोथ कंपनी होगी, बर्कशायर हैथवे ने कभी भी डिविडेंड नहीं दिया. सो मतलब देयर आर बिजनेसेस की जहां पे अगर डिविडेंड पे आउट कम है, देन स्टेप 2 इज कि वो पैसा सही जगह लग रहा है या नहीं लग रहा है एज अ शेयर होल्डर, क्या मेरे को किसी बेटर जगह पे इन्वेस्ट हो रहा है नहीं हो रहा है. सो इट इज सिंपल कि मतलब मैं देखता हूँ कि जनरली कि 3-4 साल का ब्लॉक उठा के हम टोटल कर लेते हैं कि 4 साल या 3 साल में कंपनी ने कितना कमाया मोटा मोटा. इस केस में जैसे कंपनी ने करीबन 250 करोड़ रुपया नेट प्रॉफिट कमाया, और 250 में इसने मोटा मोटा 25% डिविडेंड पे आउट कर दिया. सो समवेयर अराउंड 200 करोड़ इसने रिटेन किया होगा बिटवीन 2017 एंड 2020. 150 करोड़ का मोटा मोटा. सो 2017 एंड 1 इस दौरान पे ये पहली चीज रिजर्व्स में जाना चाहिए. कई कंपनीज में हमने ये भी देखा है कि रिजर्व्स उतने से इंक्रीज नहीं होंगे, बल्कि रिजर्व्स वहीं के वहीं रहेंगे जबकि प्रॉफिट इतना आया होगा. अगेन अ गुड अकाउंटिंग जो कई कंपनीज खेलती हैं क्या करती है, वो एक्सपेंसेस को रिजर्व्स के अगेंस्ट चार्ज ऑफ कर रही होती है.
तो वहां पे ये लाइन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो इंक्रीज हुआ। सेकंड, अगर ये इंक्रीज हुआ तो इतने से बैलेंस शीट बढ़ी, और वो बैलेंस शीट का फ्लो कहाँ गया? तो यहाँ पे जैसे ही हमने 2017 और 20 की कंपेयर करी है वो बैलेंस शीट, हमारे को दिख रहा है कि फिक्स एसेट्स में मोटा मोटा 150 करोड़ फ्लो हुआ है। तो कंपनी हैज इन्वेस्टेड बैक इनटू द बिजनेस टू ग्रो द बिजनेस। और इसी अलग एग्जांपल लेंगे जो ये वर्किंग कैपिटल में चला जाएगा पैसा, या वो लोन्स एडवांसेस में जा रहा है, तो आपके फिक्स एसेट्स वगैरह में नहीं जाएगा कि जहां से बिजनेस ग्रोथ फिर से आएगी। सो दैट विल शो दैट भाई इंटेंशन वाला पार्ट कि क्या वो हमारे हित के डिसीजंस कर रहे हैं, या मतलब जस्ट बिजनेस मतलब कंपनी को ग्रो या किसी और डायरेक्शन में ले जाने के लिए। एंड सेकंड अबाउट स्किल पार्ट कि वो कंपनी का मैनेजर जो भी रन कर रहा है वो कितना स्किलफुल है। एंड दैट इज वेयर मतलब वर्किंग कैपिटल शोज अ लॉट, टेल्स अ लॉट अबाउट स्किल ऑफ द मैनेजर हु इज रनिंग द बिजनेस। A good manager will generally have control over the receivables, will have a control over the debt बहुत aggressively कई कंपनीज में ग्रो कर रहा होगा, वो उसका एक बता रहा होता है कि वो किस टाइप का मैनेजर है जो रन कर रहा है, एंड रिसीवेबल्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे इस केस में अगर हम ट्रेड रिसीवेबल्स देखें तो मतलब ओवर 10-12 पीरियड अगर आप देखेंगे तो 80 के ऊपर गए ही नहीं कभी रिसीवेबल डेज। सो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट चेक दैट अ मैनेजमेंट इंपोजेस कि दे डोंट वांट टू डू बिजनेस ऑन लूज टर्म्स, कि 2 महीने का क्रेडिट इज जनरल टर्म्स जो रहता है। जो बहुत ही एक्सेप्शनल बिजनेसेस होते हैं, एचयूएल्स वगैरह हुए, वो सबका वो एडवांस में पैसा पा रहे होते हैं, उनमें तो रिसीवेबल 10 दिन का भी कई बार नहीं हो रहा होता है। एंड दैट इज वेयर कि उनका एक मैनेजर्स जो है उसके बारे में काफी कुछ एक कई बार पता लग रहा होता है डेटर डेज। एंड जिनका ब्रांड बहुत स्ट्रांग है। इसी तरह से जैसे अब मैं नेगेटिव केस बताता हूँ, जैसे एक कंपनी थी नव भारत वेंचर, आप यहाँ प्रॉफिट देखेंगे, प्रॉफिट बहुत अच्छे थे, दे वर इंक्रीजिंग ओवर हियर इन लास्ट 3 years, बट इफ यू गो टू बैलेंस शीट एंड इफ यू लुक इनटू इट, तो यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेड रिसीवेबल्स आपके 200 करोड़ से 2000 करोड़ हो गए 3 साल। No, I will request आयुष भाई इस पे दोबारा एक और बार बताइए, because this is very very important कि P&L में आपको प्रॉफिट जो होता है कुछ भी दिखा देते हैं, और P&L is a very shitty statement as per me, okay, because उसमें कुछ भी आ जाता है, but the most important thing is looking at your balance sheet, you know, और उसके लिए आपका जो ये रिसीवेबल वाला पॉइंट जो आपने बोला, you know, this is very important, and especially when आप इतना अच्छा टूल बना रहे हो कि मुझे एक ही पेज पे सारे का सारा डेटा मैं कोरिलेट भी कर सकता हूँ, मैं P&L को और बैलेंस शीट को एक ही साथ में कर सकता हूँ। अदरवाइज आप सोचिए, आप बीएससी पे जाओगे या कहीं और जाओगे तो पहले आप P&L खोलोगे, फिर आप एनुअल रिपोर्ट में जाओगे, पता नहीं क्या करोगे, और यहाँ पे मैं सारी की सारी चीज एक पेज पे कर सकता हूँ। आई रियली रिक्वेस्ट ये दोबारा बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स। बेसिकली वही टॉगलिंग करते रहना चाहिए अपने को व्हेन यू आर एनालाइजिंग द नंबर्स कि P&L एंड बैलेंस शीट के बीच में हम टॉगल करें। तो जैसे यहाँ पे जब हम रेशियोज पे क्लिक करेंगे, यू विल सी दिस पार्ट की डेटा डेज यहाँ पे जैसे 25-30 होते थे, देन दे बिकेम 45, देन दे बिकेम 120, टुडे दे आर एट ऑलमोस्ट 300। कि पहले 30 दिन में कंपनी के पास पैसा आता था, फिर 100 दिन में आने लगा, आज की तारीख में 300 दिन से उसके पास करीबन पैसा आया नहीं है। एंड जो आपने कहा रिलेशन, तो जैसे सेल्स 1300 की 2700 हुई, दुगनी हुई। somebody will get excited कि यार कंपनी में ग्रोथ आ गई, एंड दिस हैपेंड विद मी कि मेरे को एक्साइटमेंट आया कि अरे वाह कंपनी तो बहुत अच्छा कर रही है, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, पी कम है, बट व्हाई दैट वैल्यूएशंस वर लो, बिकॉज़ देयर वाज अ प्रॉब्लम इन द बैलेंस शीट। सेम दौरान जो डेटर्स थे, अगर इस बेस को ना ले 700 का बेस ले, 700 से वो 3 गुना हो गए। एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो और भी ज्यादा, यहाँ पे 1500 करोड़ के रिसीवेबल्स बढ़े, जबकि सेल्स हमारी जो यहाँ पे इंक्रीज हुई होगी वो 2300 से 2700, मतलब अगर 18 700-800 करोड़ की बड़ी सेल, बट आपका पैसा उससे आधा अटक गया। मतलब दिस इज लाइक कि आपने जाके सेल्स कर दी, बट यू आर नॉट गेटिंग पेड फॉर इट। No, very important. A lot of companies we have seen in the past, you know, which have not set good examples. These problems become even more aggravated when there is debt on the balance sheet. मतलब इस केस मतलब they will be always stressed, मतलब not about this company, ऐसा जरूरी नहीं कि काम पे कोई गलत हो रहा हो, तो बट usually we have seen that is how companies get into debt trap. अरे रूल्टा उठा लीजिए आप, you know, काम भी उठा लीजिए, आप कुछ भी उठा लीजिए, आपको देखेंगे आपको बहुतों में दिखेगा ये चीज कि दिस इज हाउ क्या होता है कि वर्किंग कैपिटल को मैनेज करके नंबर्स आते जाते हैं, एंड इवेंचुअली व्हाट यू सी कि पहले नंबर्स आ रहे थे और बाद में बहुत बड़े राइट ऑफ आ गए। इसका मार्जिन देखिए आप, मार्जिन 34% से
41%। मतलब if you were till FY15 आपको लगता है कि क्या क्या मजेदार कंपनी है यार ये तो ये आईटी कंपनी बेचारी टीसीएस इन्फोसिस 20-25% से ज्यादा मार्जिन कमाती नहीं है, और उल्टा वो शोइंग 40% मार्जिन। तो यहाँ पे debtor days were very high for very long periods of time. And second, I think most important then also comes is the promoter holding part. ये हम लोग ने एक चीज पे बहुत फोकस किया है जब हम मैनेजमेंट इंटेंट या उसकी बात कर रहे हैं। तो जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाउ आर द प्रमोटर्स पुटिंग देयर ओन मनी एंड स्टेक? सो द स्मॉलर द कंपनी द हायर द प्रमोटर होल्डिंग वी वांट। और ये हमारा स्टार्टिंग में हम लोग मतलब यहाँ पे एक ऑप्शन है जहाँ पे आप क्विक रेशियो जोड़ सकते हैं, तो आपको वो हाईलाइट पे स्टार्टिंग में वो रेशियोज दिखते हैं। दिस इज वेयर कस्टमाइजेशन कम्स इन की जैसे अगर मेरे को प्रोमोटर होल्डिंग बहुत मैटर करती है, आई लाइक टू सी प्रोमोटर होल्डिंग सबसे पहली चीज। तो अगर हम बिल्कुल टॉप पे कंपनी के जाएंगे और यहाँ पे हमारा डब्बा है जहाँ पे हम कोई भी रेशियो डालेंगे तो उसको वो तुरंत कैलकुलेट करके शो कर देगा। And this will get saved and will show for each and every company. अब आप कंपनी चेंज करो जैसे और इसी तरीके से मेरे को डेट टू इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपनी में हम चाहेंगे हमारे डेट टू इक्विटी चाहिए और डेटर डेज भी ले लेते हैं। तो आज हमने 3 नए रेशियोज ऐड कर दिए। Now for any company that we analyze, let's say अवंती फीड्स पे हम गए तो वहां पे अपने आप ही इसने तीनों चीजें कैलकुलेट करके दिखला दी। एंड दिस इज द बेनिफिट ऑफ रजिस्टर का कि अगर हम यहाँ पे अकाउंट बना लेंगे तो ये चीजें मिल जाएंगी। इसमें मैं एक चीज और थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इसमें कुछ चीजों पे हमने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन किया, जैसे एक बार मिड ईयर बैलेंस शीट्स। ये भी एक चीज है जो बहुत ही कम वेबसाइट में मिलेगी कि सितंबर बैलेंस शीट्स वो लोग रिकॉर्ड करते हैं, दो इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कि मिड ईयर में वो क्या चीज हो रही है। इसी तरीके से टीटीएम का कॉलम, दिस इज अगेन समथिंग दैट वाज नॉट अवेलेबल यूजुअली एंड वी ट्राइड टू एड इट। एंड इसमें डेटा मतलब आज की जैसे एनुअल ट्रेलिंग 12 मंथ टीटीएम इज ट्रेलिंग 12 मंथ्स। मतलब अभी हम अगर मार्च 21 में हैं तो दिसंबर तक के रिजल्ट्स आ गए हैं, तो लास्ट मार्च से लेके दिसंबर तक के रिजल्ट्स बेसिकली आखिरी 4 क्वार्टर का वो टोटल कर लेता है। इसमें भी एक जो ऑप्टिमाइजेशन किया, तो जैसे ये एनुअल डेटा भी आता है तो जनरली एनुअल रिपोर्ट्स रिलीज होने के बाद आता है एंड एनुअल रिपोर्ट आने में कई बार 5-6 महीने लग जाते हैं। इस दौरान कंपनी एक खाली स्नैपशॉट रिलीज करती है समवेयर अराउंड मई के महीने में। अभी वो मार्च 2021 के रिजल्ट्स पब्लिश करेगी, दैट विल बी 1 पेजर, वो भी अब यहाँ पे शो हो जाते हैं एंड दैट इज आल्सो अपडेटेड विद इन यूजुअली 24 आवर्स। सो ऑल दिस डेटा, लोगों का बहुत ज्यादा सवाल रहता है कि कितना डिलेड रहता है, कितनी देर बाद अपडेट होता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स, एनुअल डेटा, मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आर अपडेटेड विद इन 24 आवर्स आफ्टर द पब्लिक रिलीज। एंड आल्सो यहाँ पे जैसे एक हम लोगों ने ये भी छोटा सा डाल दिया है प्रोडक्ट सेगमेंट। नहीं, सो सॉरी, आई विल कम टू, मेरे मन में था ये पूछने के लिए आपसे, बट आई एम सीइंग द सेकंड पार्ट जो आप लोगों ने कवर किया, व्हिच इज द मैनेजमेंट इंटेंशन। यू नो, पहले हमने बिजनेस पे बात किया जहां हमने बोला कि यू लुक आउट फॉर दिस 4 और 5 रेशियोज। अगर आपको सिंपल एक किसी भी कंपनी के बारे में समझना कि अच्छा है कि बुरा है। फिर हमने मैनेजमेंट इंटेंशन के बारे में बात किया, उसने हमने बोला कि मैनेजमेंट इंटेंशन में 4-5 चीजें हैं, स्पेशली डिविडेंड पे आउट जो आपने यहाँ पे दिखाया। देन आपने बोला बैलेंस शीट में जाइए, बैलेंस शीट में आप एटलीस्ट रिसीवेबल देख लीजिए, डेट देख लीजिए, फिर आप रेशियोज में जाइए। आप रेशियोज में जाके आपको पता चल जाएगा किस तरीके से इसके डेटर्स डे रहा है। वो 5वां चीज आपने बताया शेयर होल्डिंग, ये देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा हाउ मच एफिशिएंट द मैनेजमेंट इज, हाउ मच विलिंग द मैनेजमेंट इज कि वो आपके साथ शेयर करना चाहता है, और हाउ मच स्किल इन द गेम इज वाया द शेयर होल्डिंग पैटर्न, राइट? परफेक्ट। सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि मैं 2 कैटेगरीज में और उनकी 2 सब कैटेगरीज बना दी है ताकि वी आर जस्ट मूविंग अलोंग विद। बिल्कुल। अभी हम प्रोडक्ट पे जाते हैं, जो आपका प्रोडक्ट सेगमेंट था जो आपने बोला। सो जैसे इसमें हमने गए एंड दिस इज वेयर मतलब जो नॉर्मल यूजर्स के लिए शायद इतना कुछ काफी है, बट जो एक एडवांस्ड यूजर होगा उसको और भी ज्यादा एनालिसिस करनी है, दैट इज वेयर दिस फीचर्स देयर एंड दिस वन इज लाइक जो प्रोडक्ट सेगमेंट्स का ब्रेकअप है, दिस वन इज अ स्मॉल प्रीमियम फीचर। ये फ्री में नहीं होगा बट ये प्रीमियम में आ जाता है एंड इट विल जैसे इस कंपनी में जितने भी उसके प्रोडक्ट सेगमेंट्स हैं तो अलग अलग सेगमेंट्स की सेल क्या है, वी कैन चेंज इट टू डिफरेंट
पैरामीटर कि हमारे को एज अ अमाउंट नहीं देखना, एज अ ग्रोथ देखना कि हर सेगमेंट में क्या ग्रोथ आई, तो हर सेगमेंट की ग्रोथ दिखला देगा। अमाउंट देखना है तो अमाउंट आ गया, इसका पीबीटी क्या रहा हर सेगमेंट का, अमाउंट देखना है अमाउंट, मार्जिन्स, ग्रोथ, इस तरीके से हम डिफरेंट पैरामीटर्स पे उसको टॉगल कर सकते हैं। एंड आरओसी, एंड अगेन मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड का एब्सोल्यूट अमाउंट या आरओसी। एंड दिस वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी यूजफुल टू वेबसाइट अस। में ये है, किसी भी वेबसाइट में ऐसा डेटा हो ही नहीं सकता कि जिस तरीके से आपने अगेन एक ही पेज पे सब सेगमेंट्स का डेटा भी दे दिया है। इट्स अमेजिंग। मगर आप रिलायंस को खोल के देखिए, आई थिंक रिलायंस विल बी अ ग्रेट एग्जांपल बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल, मगर आयुष भाई को मुझे मालूम है अवंती से प्यार है, बट अगर हम रिलायंस के बारे में बात करें, सो इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट एग्जांपल टू गिव फॉर रिलायंस। सी नाउ, तो इसमें भी जैसे इनके इतने सेगमेंट हो गए, बट आई थिंक सबसे ज्यादा यूजफुल तो नीचे ये आरओसी वाला पार्ट बहुत अच्छा है कि वेर यू कैन सी कहाँ पे कौन से बिजनेस में कैश काउ है या फिर कहाँ पे ग्रोथ आ रही है। जैसे अगर या फिर यहाँ पे हम ग्रोथ कर लें बिकॉज दी नंबर्स आर वेरी बिग, सो वी विल आल्सो रियलाइज कि कहाँ पे बड़ी मतलब ग्रोथ आने लग रिटेल गई से है। एकदम से चेंज आया, डिजिटल सर्विसेज, दीज टू हैव बीन मतलब इमीडिएट ड्राइवर्स जो यहाँ पे हमारे को इमीडिएटली विजिबल हो जा रहा है। ये दिख रहा ना नीचे, ये 2% से ऑर्गेनाइज रिटेल 1% से 5% आरओसी हो गया, डिजिटल सर्विसेज नेगेटिव से 21%। राइट, And this is where the magic is happening of the transformation of Reliance. Exactly. So this is very very useful, very very useful feature, seriously. Uh, Coming to the management part, I think also the other things that one should do whenever he's working on a company is few basic things like जिसके हम लोग ने हर समय लिंक्स देने का ऑटोमेशन किया है कि आप वेबसाइट, if you want to study company you need to spend some time on their websites. Then coming to documents, उसकी जितनी भी एनुअल रिपोर्ट है, दिस इज वेयर यू विल गेट टू नो मोर अबाउट द बिजनेस कि ये क्या हो रहा है बिजनेस लास्ट मल्टीपल इयर्स की एनुअल रिपोर्ट। देन द क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट, मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है यहाँ पे आपको क्वालिटेटिव इंसाइट जो होती है थोड़ी बिजनेस की कि उसके की स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है, क्या रिस्क पॉइंट है, या यहाँ पे आपको वो कैप्चर हो जाते हैं। वेरी नाइस। सो मतलब कैन यू ओपन वन, एक बार खोलेंगे आप इसको डॉक्यूमेंट्स को, कोई भी व्हाटएवर व्हिचएवर सेक्शन यू वांट टू, एनुअल रिपोर्ट्स छोड़ के ये रीसेंट अनाउंसमेंट मींस आप बीएससी और एनएससी दोनों उठाते हो? राइट, हालांकि यहाँ पे एक ही दिखलाते क्योंकि जनरली रिपीटिशन होता है। 22 तारीख को उसने बीएससी पे भी फाइल किया होगा, एनएससी पे भी फाइल किया होगा। So if it company is listed on both exchange, so only one exchange announcements are shown. Wow, okay. So I go to view all, then I'll go to BSc site. हाँ, बीएससी की साइट पे जहाँ पे वो सारे अनाउंसमेंट शो करते हैं फॉर फिल्टरिंग एंड एवरीथिंग, तो डायरेक्टली उस पेज पे पहुंच जाते हैं। यहाँ से फिर हम किसी भी अनाउंसमेंट पे, पर्टिकुलर अनाउंसमेंट पे पहुंच सकते हैं। बट इफ वी क्लिक ऑन एनी पर्टिकुलर अनाउंसमेंट, सो इट विल लाइक, जैसे अगर हमने ये वाला क्लिक किया शेयर होल्डिंग पैटर्न का, सो एग्जैक्ट अनाउंसमेंट पे वो पहुंच जाता है। अगर पीडीएफ होगी उसमें कोई भी, तो उस एग्जैक्टली पीडीएफ पे पहुंच जाएगा। वेरी नाइस। सो मतलब स्क्रीनर इट्स लाइक अ वन पेज रिपोजिटरी जहाँ पे आपने एक ही पेज पे मुझे सब कुछ दे दिया, सब लिंक्स दे दिए, चाहे मुझे वेबसाइट देखना हो, चाहे मुझे बीएससी एनएससी का अनाउंसमेंट देखना हो, चाहे मुझे एनुअल रिपोर्ट्स देखना हो कंपनी की वेबसाइट पे जाके, चाहे मुझे क्रेडिट रेटिंग्स देखना हो फ्रॉम हुएवर क्रिस्टल लिख रहा हो, हुएवर कम्स इन, तो आपने एक ही पेज पे सब कुछ दे दिया मुझे। बिल्कुल, यहाँ तक कि इसके अब हम लोग ने ये कॉन कॉल्स और इन्वेस्टर डिस्कशंस जो होते हैं उसको भी अब हम लोग ने ऐड कर दिया है। जैसे अगर हम हेस्टर बायोसाइंस खोल ले, तो अब आपको यहाँ पे सारे कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स दिखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों होता जा रहा है, क्योंकि व्हाट इज हैपनिंग डे बाय डे, इंफॉर्मेशन इज इंक्रीजिंग, नाउ कंपनीज आर ओपनिंग अप, दे आर टेलिंग व्हाट दे आर डूइंग, व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ्स, हाउ इज द बिजनेस डायरेक्शन गोइंग टू बी। तो ये आपकी क्वालिटेटिव रिसोर्सेज हैं जिसको आप टाइम स्पेंड करेंगे तो यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि यार देखिए क्वांटिटेटिव तो डेटा दिख गया आपको, पीएनएल दिख गया, बैलेंस शीट दिख गई, लेकिन इसके बाद एज कहाँ पे आता है, एज कहाँ पे कैन यू स्पेंड टाइम की यार ये कंपनी किस किस सेगमेंट्स में लीडर है, आज ये कहाँ इन्वेस्ट कर रही है फॉर फ्यूचर ग्रोथ, मैनेजमेंट का विजन क्या है, व्हाट दे एम टू डू इन नेक्स्ट 2-3 इयर्स। अगर हम दूसरे 2-3 कंपनी से कंपेयर करें तो हाउ आर दे प्लेस, इनकी स्ट्रेंथ क्या है, बेटर क्या है, तो इसके लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए। एंड टू द इन्वेस्टर वी आर गिविंग ऑल दी लिंक्स एट वन प्लेस की एनुअल रिपोर्ट यूजफुल है, वहां आप जा सकते हैं, क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट, कॉन कॉल,
And there's a new thing that we have started developing now, which is ऑन कॉल्स आयुष भाई सबका होता है, बट आई कुडंट सी फॉर रिलायंस, आई डोंट नो, जब आपने खोला था रिलायंस खोला था या फिर आपने कोई और कंपनी खोला था उनका, आई डोंट नो डिड आई मिस बिकॉज़ देयर वर 3 डब्बास ओनली। हाँ, सो इसमें मतलब करीबन 70% ऑफ कॉन कॉल्स अभी अवेलेबल है, ऑल दी कॉल्स व्हिच आर सबमिटेड ऑन एक्सचेंज, फॉर रिमेनिंग 30% आल्सो विद मतलब वी आर मतलब पुटिंग इन देम मैनुअली, एंड मे बी विद इन 1 मंथ और 2 मंथ वो पूरा हम कवर करने का कोशिश करें, सो मे बी विद 2 मंथ विल बी अवेलेबल। बट इसमें भी 2-3 चीजों को मैं बताना चाहूंगा कि जैसे इसमें भी मतलब ये सारी चीजें ऐसी नहीं है जो पहले अवेलेबल नहीं थी, ये सारी की सारी चीजें गूगल पे अवेलेबल है। इट इज जस्ट दैट कि इन चीजों पे कहीं पे गूगल कहीं गड़बड़ कर गया है। अगर आप कोई भी कंपनी हेस्टर बायोसाइंस का आप सर्च करोगे, बाकी वेबसाइट्स ने इतना ऑप्टिमाइज कर रखा है कि खाली जो टॉप 10 रिजल्ट्स आएंगे, यहाँ तक कि अगले 2 पन्ने तक जो पन्ने आएंगे, दे विल बी ऑल बी ऑफ फाइनेंस पोर्टल्स, वेबसाइट्स लाइक स्क्रीनर। स्क्रीनर का पहले पन्ने पे रिजल्ट आएगा, ट्रेंड लाइन का पहले पन्ने पे आएगा, टिकर टेप का आएगा रिजल्ट। ये सब जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं, ये सब कहीं खो गए हैं गूगल पे। आई एग्री, दिस इज वेरी वेरी रिलेटेड आएंगे, आपको जितने भी अपडेट्स आएंगे, स्टॉक प्राइस ट्रैक करने का आएगा या आर्टिकल्स का आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि ये कोई भी सोर्स ऐसा नहीं है जो अवेलेबल नहीं था, इट वाज जस्ट कि इट वाज बिकमिंग हार्ड फॉर अ पर्सन टू रीच ऑन दीस public documents and we have just collated them at one place। इसमें हमने कुछ बहुत माहिर चीज नहीं की, जस्ट खाली कहीं पे कोई एक सर्विस। अरे प्रत्युष भाई, अमेज़न ने भी कुछ खास नहीं किया, उसने भी सबको मिला के एक जगह पे रख दिया, ठीक है ना, बट आप ऐसे मत बोलिए, आपने जो काम किया बहुत बड़ा काम किया है। इट्स अ सीरियसली सुपर डुपर क्लीन नीट टाइडी दिल से एफर्ट जो आपने किया है, जो सब कुछ एक में मिल गया है। आई कांट काउंट एनी वेबसाइट इन इंडिया जहाँ पे आपको सब कुछ एक जगह पे इतना आराम से मिल जाए। एज ए सेड कॉन्कॉल्स का मुझे नहीं पता था पहले, टू बी ऑनेस्ट। नाउ यू आर शोइंग मी, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल वंडरफुल फीचर, बिकॉज़ देन अगेन आई डोंट हैव टू गो टू अ बीएसई वेबसाइट, वहां पे देखूंगा कि चलो ट्रांसक्रिप्ट कहाँ पे मिलेगा, या कंपनी का वेबसाइट पे जाके देखूंगा, वहां देखूंगा, यहाँ पे विचएवर व्हाट आई एम ट्रैकिंग, मुझे एक ही पेज में सब कुछ मिल गया। दैट इज व्हाई इट्स अमेजिंग टूल। राइट। सॉरी, आप एक बोल रहे थे, यू एडेड वन मोर फीचर, आपने कुछ विकी का बात कर रहे थे, राइट? तो मतलब एक क्वांटिटेटिव पार्ट हो गया, क्वालिटेटिव पार्ट हो गया। क्वालिटेटिव में दीज आर सोर्सेज जहां से इंसान जाके खुद डिग कर सकता है, प्लस एक विजडम ऑफ क्राउड होता है कि उन सब चीजों को भी अलग अलग तरीके से लोग इंटरप्रेट करते हैं। मतलब अगर कॉन कॉल भी खोलेंगे तो ये 25 पन्ने की है, और 25 पन्ने में 5 पॉइंट 6 पॉइंट बहुत मेजर होंगे जो बार बार इसमें अलग अलग तरीके से डिस्कस हुए होंगे। उस जगह पे हमने विकी बनाने की कोशिश करी कि जैसे विकीपीडिया पे हम कोई भी चीज को टाइप करते हैं, उसके बारे में कोई भी आके उसको एडिट करके लोग मिलके उसकी एक नॉलेज बिल्ड कर सकते हैं। सेम चीज हमने यहाँ पे कोशिश करी है क्रिएट करने की। सो anyone can go and edit this about part of this company। आप edit पे क्लिक करके उसका edit कर सकते हो, और हम लोग उसको अप्रूव मतलब चेक करके उसको अप्रूव करते जाते हैं। एंड दैट इज हाउ इट इज। मतलब इसके जो 5-6 मेन पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे किसी ने आके मेहनत करके उसको पूरा डॉक्यूमेंट कर रखा है। तो कितने लोग काम करते हैं आपके लिए यार? बाकी देयर आर सो मेनी लिस्टेड कंपनीज, और हाउ डू यू चेक एवरीथिंग? मजा आता है भैया को इस चीज में, मजा आता है। मतलब यू वोंट बिलीव, बट मतलब भैया रीड्स थ्रू ईच एंड एवरी एडिट दैट समवन सब्जेक्ट सबमिट्स। कोई भी एडिट आता है तो भैया उसको चेक करता है जाके। इसमें हर चीज का लिंक भी है, मतलब इसमें आप देखोगे तो ये एक बार में आप स्किम कर सकते हो कि क्या क्या है। मतलब देयर इज अ बोल्ड हेडिंग व्हिच डिस्क्राइब्स क्या है, प्लस एक लिंक जो उसके सोर्स पे ले जाता है, which will tell you exact that page। and the purpose of this is कि मतलब पहली बार जब आप किसी कंपनी पेज पे लैंड करेंगे तो आपको ओवरव्यू दे पाए ये बिजनेस है क्या और उसके की पॉइंट्स क्या है। मतलब कि जैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस का ये पोल्ट्री हेल्थ केयर है, इसमें कर क्या रहा है, तो ये वैक्सीन बना रहा है फॉर दीज डिजीजेस। आज इतनी वैक्सीन है इसके पास, इससे इतना रेवेन्यू आया। एनिमल हेल्थ रिसर्च डेवलपमेंट कहाँ है, एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्या है, एंड देन ऑल्सो आगे 2-3 साल क्या होने वाला है, कहाँ एक्सपेंशन है की, कहाँ उसने की कोलैबोरेशन की है, कहाँ इनोवेशन कर रहा है। एंड दिस विल बी नॉट मोर देन 5-minute read for anyone for each of the company। so in 5 minutes we are trying to capture, जिसको पढ़ के कोई भी यूजर समझ पाए ये बिजनेस के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या है, ये की बिजनेस है क्या बेसिकली, और स्ट्रेंथ्स क्या है उसको ब्रेक डाउन कर पाए, एंड की डेवलपमेंट जो हो रहे हैं वो समझ पाए। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। मैंने अगेन पहली बार देख रहा हूँ ये वाला फीचर, बट दिस इज अमेजिंग, सुपर सुपर अमेजिंग।
So I can go and I can add my points और वो मेरे लिए so even if so when we keep on reading a lot of reports, right? कि कभी इस कंपनी पे ये वाला रिपोर्ट आया, कभी इस कंपनी ये वाला रिपोर्ट आया, I can keep on adding कि चलो इस रिपोर्ट में ये था, so I can keep on adding and कल को जाके वापस जाके I can refer to my notes also, right? Yeah, if it's approved by Ayush bhai. मतलब if it is helpful for everyone कि जैसे कई बार हाँ कि इसमें कई बार लोग मतलब कभी कभी होता है जनरली डाल दिया कि प्राइस विल गो अप, सो उस टाइप की चीजों को जनरली बस हटा देते, बट मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज यूजफुल इनपुट्स, कोई ना किसी ने उस पर वर्क किया होता है और वो जनरली उसको हम थोड़ा सा रिफ्रेम करके वर्ड्स को सही करके उसको सही कर देते हैं। सो मतलब एक्चुअली इसका भी यूज केस था कि ज्यादातर हम लोग किसी से भी बात करते हैं वो कहते हैं छोटी कंपनीज में हम कैसे इन्वेस्ट करें, उसकी इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है, एंड दैट इज अ ब्रिज दैट वी आर ट्राइंग टू फिल की नहीं, हर कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करी जा सकती है। अगर 85 करोड़ की भी कंपनी है तो उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन होती है। And trying to make it as simple as possible, not मतलब even for large companies like आपने Reliance पूछा, तब Reliance के बारे में आपको ये जो पढ़ेंगे आपको इसमें इतना बेसिक मिल जाएगा कि मतलब ईच की सेगमेंट में की थिंग्स क्या हो रही हैं, which is the growth driver, which is the most profitable thing, और ये पूरा इतने में कैप्चर हुआ है। Wow. Nice. So you explained us three things, okay, जो मैं अभी तक समझा। एक तो है कि नॉर्मल आपको कंपनी देखनी है कि ठीक है कि नहीं ठीक है। दूसरा आपने बोला हाउ टू असेस द प्रमोटर इन फ्यू वेज, जो आपने बोला। थर्ड इज द न्यू फीचर्स जो आपने ऐड किए हैं एंड विच आर वेरी 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 यूजफुल, विच इज द ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ द कॉन कॉल्स, द प्रोडक्ट सेगमेंट एंड दिस विकी थिंग। द थ्री थिंग्स जो आपने ये तीन चीजें समझाई, राइट? So I'm going with your philosophy of आपने जब शुरू की थी presentation आपने बोला था business, people and one more thing, right? If I'm forgetting Valuation. valuations. So valuation is the most toughest part and maybe most forgiving also, like Pratyush says कि valuation में गलती कर जाएंगे चलेगा, कंपनी गलत में नहीं फंसना है। So Professor Bakshi sir again taught this thing कि बिजनेस पे गलती ना करना, बिजनेस अगर डिटोरिएट हो रहा है तुरंत डिसीजन लो, लोग डिटोरिएट हो रहे थोड़ा सा लीवे दे सकते हो, वैल्यूएशन डिटोरिएट या कम ज्यादा हो रहा है बहुत दूर तक गलती चल जाएगी अगर बाकी दोनों सही रहे होंगे। अगली बार मुझे प्रोफेसर बख्शी को भी बुलाना पड़ेगा सच्ची में, क्योंकि अच्छा है कि हमें वो सिखाते रहेंगे आप बताते रहेंगे, वो सिखाएंगे आप बताएंगे। तो वैल्यूएशन के लिए क्या मॉडल्स अपनी साइट पे जो यूज किए जा सकते हैं? आई थिंक देयर इज दिस पीयर कंपैरिजन टेबल व्हिच इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। सो मतलब पहली चीज वैल्यूएशन इज वेरी सब्जेक्टिव कि किसी के लिए कोई वैल्यूएशन अच्छा हो सकता है। लोगों ने घटिया कंपनियों में भी पैसा बनाया, देयर आर स्पेसिफिक हेज फंड्स व्हिच इन्वेस्ट ओनली इन द कंपनीज जहां पे सब कुछ गंदा है एंड दे आर इन्वेस्ट मतलब फंड्स जो खाली टॉप क्वालिटी पे करते हैं, एंड दोनों ने पैसा बनाया है। सो मतलब दैट इज आल्सो अ रीजन व्हाई वी हैव अवॉइडेड एनी वैल्यूएशन इंडिकेटर। ज्यादातर वेबसाइट्स पे आपको स्टार मिल जाएगा, ये इस कंपनी को 4.5 स्टार मिलना चाहिए, इस कंपनी को 2 स्टार मिलना चाहिए, बट मतलब दैट डिपेंड्स ऑन पर्सन। किसी को हो सकता है 2 स्टार वाली ही कंपनियां चाहिए और वो दूसरे के लिए हो सकता है 2 स्टार ना हो। सो दैट्स वेयर वी हैव अवॉइडेड एनीथिंग रिलेटेड टू ऑटोमेशन ऑन वैल्यूएशन पार्ट। बिल्कुल सही है। एंड मतलब उसके लिए जो कुछ हिंट्स हैं, वन इज दिस पीयर टेबल की उस इंडस्ट्री में सारी कंपनीज को हमने सॉर्ट कर दिया ऑन मार्केट कैप, एंड मतलब वो कई बार दिखला होता है कि बाकी के रिलेटिव वैल्यूएशंस क्या आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इफ आई ओन अ हॉस्पिटल कंपनी जो मेरे को पसंद है, whenever I look at this peer table I feel कौन सी कंपनी है जो आपको पसंद है? so like you can just clearly make out the kind of valuation that the other companies in this space get, while if there's a smaller company which is getting much lower valuation despite better numbers. So these are the obvious things that you can see from a peer comparison table. The other tool that we have incorporated is this P ratio chart. Valuation में कई बार ये बहुत helpful होता है कि how the PE has behaved over long period of time. For example, in this Kowai also, earnings अब यहाँ grow कर रही है, but maybe PE पहले से कम है, so this is something favorable for an investor. या फिर जैसे ये चीजें बहुत obviously होती हैं, Polymedicure में हुई थी,
क्रिसिल में हुई इन अ एक बार मेजर ये वे। मैं चार्ट बता देता हूँ, इसमें बैकग्राउंड में जो बार्स हैं दे आर द अर्निंग्स, एंड जो लाइन है दैट इज द पी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो. So the earnings is improving, and that is why the PE is also expanding now, but not at the level what it was earlier in 2016. या तो मतलब जस्ट अ ईयर बैक व्हाट वाज हैपनिंग हियर कि यहाँ पे एक स्टॉक था व्हिच यूज्ड टू गेट 25-30 पी, बट मे बी फॉर सम टाइम अर्निंग्स वर डल या बिलो एक्सपेक्टेशन और या स्मॉल कैप करेक्शन हुआ, एंड इट पी kept degrowing despite earnings coming in, and now when those earnings became really big, it is again getting re-rated. So this is what we have seen in cycles happening to so many stocks in the mid and small cap space. So this chart many often has been very, very helpful. What is the sales and margin इसके साथ में? हाँ, so जैसे इसमें भी P में ये हुआ था पॉलीमेडिक्योर में, it used to get a good P, but somehow last year the P came down to very low levels of 20, and now again it has gone back when the earnings have come. Wow. So this is what personally I have found very helpful in companies keep buying them when they are out of flavor, but the earnings start coming. So you get some window till वो market recognize करती है उसे. सेल्स एंड मार्जिन वाला जो अभी हम लोग ने पहले देखा था कि हम लोग सेल्स को देख रहे थे, मार्जिन्स को एनालाइज कर रहे थे, उसी के लिए ज्यादा इजियर वे है कि ये पिछले 12 साल के सारे क्वार्टरली रिजल्ट्स, मतलब क्वार्टरली रिजल्ट्स की मैं यहाँ पे बात करूँ, सो देयर विल बी समवेयर अराउंड 60-70 क्वार्टरली रिजल्ट्स, उन क्वार्टरली को ये प्लॉट कर देता है. सो बार्स जो इसमें है दे आर दी सेल्स. इसमें हम चाहे तो इन वेरिएबल्स को हटा भी सकते हैं. सो जैसे अगर हमारे को खाली ऑपरेटिंग मार्जिन रखना है, सो ऑपरेटिंग मार्जिन हमने रखा, एंड हाउ दी ऑपरेटिंग मार्जिन हैज बिहेव्ड, दोनों साथ में देखते तो वो कंसिस्टेंसी जो एक ये मतलब जो फ्लो है ये कुछ ही कंपनीज में आता है, एंड दिस इज रिवॉर्डेड बाय द मार्केट. जो अभी हम लोग ने पहले एक सिक्लिकल जैसे देखा था इंफ्रा टाइप का, यहाँ पे ये थोड़ा ज्यादा वोलेटाइल रहता है. जो मार्जिन्स है दे हैव बीन वेरी वोलेटाइल, द अर्निंग्स हैव बीन लगभग मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे. Very volatile. So these charts are kind of helpful. No, very helpful. Not helpful, very helpful. But I think I don't know. Is there more to help us teach in this first episode, because we are not ending it? We want people to consume it. As I mentioned, this is only for learning the basic features of Screener. We will have one more where we will go into the advanced features of Screener, right? But if there is anything more, because मैं तो honestly लिख भी रहा हूँ जो मैं आपसे सीख रहा हूँ आज कि क्या-क्या चीजें आपने मुझे सिखाई हैं, and there are few things which are new to me and I would love to explore. I think this is good on the company pay side. Let's quickly do two more things. One is the screens, कि किस तरह हम quickly in 2 minutes we'll take through कि screens को कैसे करना चाहिए, and tracking में just a small thing we like to say कि people should expand their watch list. बिल्कुल. I will just run through most of the things. ये सब हम लोग ने देख लिया, लाइव एग्जांपल्स देख लिए, क्वांटिटेटिव सारी चीज जितनी भी हमने एक्सप्लेन की है, सो दे आर डॉक्यूमेंटेड हियर आल्सो. क्या चीजें हम देखते कि अगर कभी कोई जस्ट डेक को भी रेफर कर लेगा, दे विल गेट एन आइडिया कि हमने क्या शो किया होगा. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डॉक्यूमेंटेड इन दिस. जो चीजें हमने दिखलाई है सब इसमें हमने कर रखी है. नेक्स्ट पार्ट कम्स की स्क्रीनिंग पार्ट. So if we go back to the website, second part है वही कि ideas लाए कहाँ से, क्या क्या चीजें नए ideas कहाँ से लाए. So this is where this screens tab is helpful. It will show some popular themes, किस themes पे लोग generally invest कर रहे होते हैं, some popular formulas that people invest into. quarterly results के basis पे लोग काफी active रहते हैं, नए companies नए ideas ढूंढ रहे होते हैं, valuation के metric पे हम लोग नए ideas ढूंढ रहे होते हैं. And other than that, there are lots and lots of other popular screens. There are around somewhere 70,000 screens. But इस तरीके से अलग अलग इसमें buckets created हैं. जैसे अगर मेरे को देखना है कहाँ कहाँ capacity expansion हो रहा है, या कहाँ कहाँ promoters buy कर रहे हैं, या कहाँ पे companies new high create कर रही हैं. फॉर्मूला वाली जो स्क्रीन्स होती है, these are more around some formulas that are मतलब कि इंसान को सेंटिमेंट्स अलग रखने, उसको बस एक फॉर्मूला के बेसिस पे इन्वेस्ट करना. लाइक मैजिक फॉर्मूला इज वेरी फेमस, पाइट्रोस्की स्कैन इज वेरी फेमस, कि इस पर्टिकुलर स्कोर के ऊपर ये नंबर होगा देन आई विल इन्वेस्ट इनटू कंपनी.
क्वार्टरली रिजल्ट्स में जैसे प्राइस का एक मोमेंटम होता है, वैसे ही एक परफॉर्मेंस का मोमेंटम कई लोग ट्रैक कर रहे होते हैं। हम लोग जैसे बहुत ज्यादा क्वार्टरली रिजल्ट्स पे वर्क कर रहे होते हैं कि जहां क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं वहां पे हम कोशिश कर रहे होते हैं आइडियाज ढूंढने की, एंड वैल्यूएशन के कि कौन सी सस्ती है, बुक वैल्यू 5 गुना है उसके, या हाई डिविडेंड यील्ड है। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स इज कि हम किसी भी स्क्रीन पे अगर जाएं, जैसे इस केस में नहीं, लेट्स से मेरे को डेट रिडक्शन वाली, जहां जहां डेट रिड्यूस हो रहा है उस कंपनीज को देखना है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें ये बटन गेट अपडेट्स बाय ईमेल, कि हमारे को कोई स्क्रीन समझ में आई, इफ वी क्लिक ऑन इट देन इट विल कीप ट्रैक ऑफ दिस स्क्रीन, एंड हमारे को अपने आप ही रोज अलर्ट करता जाएगा कि अच्छा कल इस कंपनी का नया रिजल्ट आया और वहां पे डेट रिड्यूस हुआ है। अच्छा, so 174 कंपनी जो दिख रही हैं, तो ये 174 कंपनीज में कोई भी बीएससी एनएससी अनाउंसमेंट आएगा या कोई भी? आउट ऑफ दी ऑल दी लिस्टेड कंपनी, जो आपके स्क्रीनिंग पैरामीटर एक बार आपने डिफाइन कर दिए कि अगर डेट 3 ईयर से कम हो गया है, ग्रॉस ब्लॉक भी मेरा एक्सपैंड हुआ है, एंड इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं अपने रेशियोज। सो whenever a company falls into this criteria, you will get alert. ओके तो ईमेल अलर्ट आ जाएगा आपको। सो जैसे यहाँ पे मतलब हर एक क्वेरी में नीचे उसमें उसका कंडीशन भी दिया है, जैसे प्रोमोटर्स बाइंग है तो इसमें क्वेरी क्या है, इंसान ने क्वेरी डाली है जहाँ पे चेंज इन प्रोमोटर होल्डिंग इज मोर देन 0 है, हमारे को ऐसी कंपनीज चाहिए। अब जब नेक्स्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न जब भी आएंगे और हमने अगर गेट अपडेट बाय ईमेल कर लिया है, तो नेक्स्ट क्वार्टर के जब शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होंगे, तो जितनी कंपनीज में रोज अपडेशन आएगा कि इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रोमोटर्स की स्टेक बढ़ी, यू विल गेट एन ईमेल अलर्ट। तो आई डोंट हैव टू गो टू अ स्टॉक एक्सचेंज टू सी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, व्हेनेवर इट हैपेंस, और आपका सिस्टम 10 घंटे में, 5 घंटे में, 24 घंटे में अपडेट करेगा, तो मुझे वन ईमेल अ डे। और दी स्क्रीन्स दैट वी आर ट्रैकिंग, मतलब उसका यहाँ पे हमने स्क्रीनशॉट भी डाला है कि जैसे हमने ये सब स्क्रीन्स देख ली, इस पे क्लिक कर दिया तो इस टाइप से हमारे पास अपडेट आता है रोज सुबह की, जैसे ये सारी कंपनीज होंगी जो, ये मेरा ईमेल बॉक्स है जहाँ पे मैंने 5-7 स्क्रीन्स अलर्ट लगा रखे हैं, तो नेक्स्ट मॉर्निंग मेरे को इस सबका समरी आ गई, और इसके अंदर इस टाइप से लिस्ट होगी कि जैसे बुल कार्टेल है, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स के अराउंड स्क्रीन बना दी हमने कि जो भी रिजल्ट्स आए हैं जहाँ पे 30% ग्रोथ आई है या 20% सेल्स ग्रोथ है, जो भी डिफाइन किया होगा उसका मेरे को अपडेट चाहिए। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरे को आ गया ये सारे रिजल्ट्स हैं जहाँ पे सेल्स ग्रोथ आप देखेंगे सब में 20% प्लस। आप लोगों ने मतलब एक न्यूज़पेपर बना दी है, बाकी सुबह सुबह उठ के बाकी हमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप हमारे ईमेल में ये सब चीजें आ जाएंगी जो हमें चाहिए। सो इफ आई वांट 1 2 3 थिंग्स जो मेरे तरीके से, चाहे मुझे पसंद है कि प्रमोटर जहाँ पे पैसा डाल रहा है डेट रिड्यूस हो रहा है, या फिर क्वार्टरली रिजल्ट्स में 25% ज्यादा ग्रोथ है, तो मुझे इतना ही चाहिए, तो वो सुबह 6 बजे मेरे इनबॉक्स में या व्हाटएवर टाइम मेरे बॉक्स में होगा। तो हमने न्यूज़पेपर बना दिया इसको। Yes. This is what Professor Bakshi also said. It is a personal newspaper wherein you are getting updated the way you want. Of course it is. It is super. So this is there. And last part was कि अच्छा हमारे कंपनी पढ़ना आ गया, हमारे को कंपनी ढूंढना आ गया, अब मैंने उसको पसंद आ गई ले ली, बट अब इसमें बैठना कब तक है, निकलना कब तक है, दैट इज द थर्ड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम। एंड अगेन इसका भी कोई सही आंसर नहीं है, बट स्क्रीनर विल हेल्प यू इन रिड्यूसिंग नॉइज एटलीस्ट। ज्यादातर लोग गलतियां कर ले जाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मतलब वो रोज कुछ ना कुछ आ रहा होता है, रोज प्राइस मूवमेंट्स आ रहे हैं, ट्विटर पे लोग किसी चीज के बारे में चिल्ला रहे हैं, काफी ज्यादा नॉइज को सेपरेट करने की हमने यहाँ पे कोशिश करी है। एंड मतलब सम थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जो ज्यादा कवर नहीं हो रही होती हैं अदरवाइज। सो जैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स हुए, एनुअल रिपोर्ट्स हुई, क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट, कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट, इनसाइडर बाइंग्स, दीज थिंग्स आपके पास अपने आप ईमेल में अगेन आ जाती है। अगेन हमारे को क्या करना है, खाली कंपनी पेज पे जाके फॉलो बटन अगर हम क्लिक कर देंगे तो जिस जिस कंपनी को हमने फॉलो कर रखा है उसका हमारे को एक रिजल्ट कैलेंडर मिल जाता है कि इसका रिजल्ट कब आ रहा है, प्लस उसके अपडेट्स मिल जाएंगे कि अब आज इसकी रेटिंग ट्रेड रेटिंग रिपोर्ट का अपडेट आया, इसमें अगर किसी भी प्रमोटर ने डायरेक्टेड पर्सन ने बाइंग की, सेलिंग की, उसका अपडेट आ जाएगा, कंपनी ने कोई अनाउंसमेंट की वो अपडेट आ जाएगा। तो दिस मेरा एक पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड बन जाता है, जहाँ पे पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड बन गया कि मैं यार आउट ऑफ द लिस्टेड व्हाटएवर 3000 4000 कंपनीज, मैं 25 कंपनीज को फॉलो कर दिया, तो वो 25 कंपनीज के बारे में मेरा डैशबोर्ड बन गया, उस पर कुछ भी कुछ होगा तो वो आता रहेगा।
Exactly. So trading updates और email पे next day morning एक email summary. So ये this is live thing and अगर आप वो भी नहीं देखते हो तो सुबह सुबह हमारे पास 5 बजे दोनों ईमेल्स 5 बजे 6 बजे के अराउंड आते हैं, 5-6 बजे के अराउंड, एंड इट विल अगेन गिव कि आज इस कंपनी का हमारा रिजल्ट आना है, इन सब की कल रेटिंग अपडेट्स आई है, ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स कर रहा है. वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस. सो यू कीपिंग अस well informed. Yeah, trying to separate that signals with noise कि noise को हम कम से कम करते जाए and signals को हम increase करते जाए. Very very nice, very very nice. So yeah, they. No, Ayush and Pratish bhai, honestly, amazing interface. You know what you have done. As I said, this is not the end. You know, this is the first episode only. We only focused on the basic features of Screener. The next one we will be doing into the advanced features of Screener. जहाँ पे a lot of things again the Mittal brothers will be teaching us. But I learned a lot. और honestly मैं आपको बताता हूँ मेरे ख्याल में 6-7 साल पहले जब मैं आयुष से मिला था तो आयुष वाज नोन ओनली फॉर अवंती और आज honestly Ayush and Pratyush are only known for Screener, apart from stock picking and other things. But I think that's a very very big thing what you guys have done. The Mittal brothers, Ayush, Pratyush, Screener, it just all goes together, and kudos to you. जिस तरीके से आपने काम किया. So I will just revise in 1 minute जो आपने सिखाया हमें, because मेरी एक गंदी आदत है to formulate everything put together. पहले तो आपने सिखाया कि अगर किसी को कुछ भी नहीं करना, किसी को कुछ मार्केट के बारे में नहीं पता, सिर्फ ये जानना है कि आपको, और प्रतीश भाई यू कैन गो ऑन योर स्क्रीनर ताकि हम लोग एक बार दोबारा टक 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 करके दिखा सके, which will be helpful to a lot of people, ठीक है ना. And we go to any company, you pick up जो भी लेटेस्ट आयुष भाई ने कंपनी ली है वो खोल लीजिए. ठीक है. सो अगर आपको कुछ भी नहीं पता किसी कंपनी के बारे में, आपको किसी ने टीवी में बता दिया, बाहर से बता दिया, आप स्क्रीनर का वेबसाइट खोलिए, सर्च फॉर द कंपनी में उसका नाम दबाइए, 5 चीजें कम से कम देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा ये कंपनी अच्छी है कि बुरी है. इट इज नॉट इन्वेस्टमेंट वर्दी, वो अलग डिस्कशन है, बट एक बार अच्छा बुरा आपको पता चल जाएगा. कंसिस्टेंसी P&L में जाके जैसे प्रत्युष ने किया, सेल्स में चले जाइए, सेल्स बढ़ रहा है, कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, वो देखना जरूरी है. देन दूसरा प्रॉफिट जो है वो उसमें बढ़ रही है, नीचे बॉक्सेस भी दिए हुए हैं तो बॉक्सेस में भी देख सकते हो आप. अदरवाइज प्रॉफिट का भी नीचे से लाइन आइटम देख सकते हो कि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा. थर्ड ROE वाला कॉलम आयुष भाई ने बताया था कि बहुत जरूरी है, 10% से कम ऊपर हो तो फिर भी ठीक है, आपको आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर थोड़ा सा सोचिए कि क्या गलती है इस कंपनी में. फिर आपने बोला था नीचे आ जाओ बैलेंस शीट में, ROC देख लीजिए आप, रेशियोज में देख लीजिए कि ROC भी 10% से ऊपर है कि नहीं है. लास्ट थिंग इज बैलेंस शीट में डेट का नंबर देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें डेट ज्यादा हो. ये 4-5 चीजें, आपको कुछ भी नहीं पता तो आप इतना देखिए ताकि आपको इतना पता चल जाएगा इस कंपनी में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए. देन दूसरी चीज जो प्रतीश भाई ने बहुत फोकस किया कि इंटेंशन ऑफ द प्रमोटर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और उसके लिए भी कुछ चीजें हैं जो बहुत बहुत जरूरी है, मेरे लिए बहुत जरूरी थी आज ये. डिविडेंड पे आउट सबसे पहले बोला कि वेदर द प्रमोटर इज शेयरिंग विद यू, जो पैसा कंपनी कमाती है वो आपके साथ शेयर कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो वो पक्का देखिए डिविडेंड पे आउट. सेकेंड आपने बोला कि बैलेंस शीट में जाके वर्किंग कैपिटल की 2-3 चीजें देख लीजिए. एक तो आपने बोला रिसीवेबल्स पक्का चेक करना कि ऐसा ना हो सेल्स बढ़ रहा हो P&L में बट रिसीवेबल बहुत ज्यादा बढ़ रहा हो, दैट इज नॉट अ गुड साइन. और दूसरे तरीके से आप रेशियोस में जाके आप डेटर्स डेज भी देख सकते हो जो आपको बता देगा कि हाँ भाई कंसिस्टेंसी है कि नहीं है या बहुत ज्यादा ऊपर जा रहे हैं. देन शेयर होल्डिंग पैटर्न आपने बोला, शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके आप प्लीज देख लीजिए प्रमोटर का स्टेक कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है, ये प्रमोटर का इंटेंशन आपको बता देगा. तो ये 2 चीजें थी. देन आपने बताया कि वैल्यूएशन वाला जो आपने पेयर्स का बताया, वैल्यूएशन वाला जो पेयर्स का बताया, दैट यूज दिस पेयर कॉलम जो ऊपर भी दिया हुआ है. then you will, again it's very subjective but again you will come to know about a lot of things. और इसको एडिट भी कर सकते हो आप अपने तरीके से, आपको प्राइस अर्निंग डालनी है या और कॉलम्स डालने हैं, बट आप इसको कर सकते हो. वी विल टॉक मोर इन द एडवांस फीचर, बट दिस विल गिव यू अ जिस्ट ऑफ द कंपनीज जो इसके साथ कंपेयर कर सकते हैं. लास्टली एंड ऑफ कोर्स नॉट द लास्ट, आपने बोला कि जो नए नए फीचर्स आप लोगों ने ऐड किए हैं, एंड आई लव अ लॉट ऑफ फीचर्स जो आपने ऐड किए हैं. वन इज द कॉन कॉल, जो डॉक्यूमेंट में आपने हेस्टर बायोसाइंसेस में दिखाया, दैट नाउ slowly going ahead in 1 or 2 months we'll have the entire companies जिसकी कॉन कॉल्स भी होंगी.
So on one page itself, apart from the recent announcements, BSE, NSE, annual reports, credit rating, you also have the entire con call which is there, which is a super duper thing. मेरे ख्याल में वो है. Then आप जो wiki वाला product बना रहे हो, I think it's just amazing, you know, कि वहाँ पे जाके अगर आपने क्वालिटेटिव नहीं मतलब एक थोड़ा सा कंपनी के बारे में धंधा जिसको मैं बोलता हूँ कि धंधे को भी समझना है तो धंधा यहाँ से आप पढ़ो, ऐड करो. बहुत 5 मिनट से कम आप पढ़ोगे तो आपको उसके बारे में वो पता चल जाएगा, विच इज ग्रेट. एंड थर्ड थिंग आई थिंक विच इज रियली रियली कूल इज द प्रोडक्ट सेगमेंट. जो प्रोडक्ट सेगमेंट जो होती है जहाँ पे आपको एक्चुअली बड़ा कंपनी में पढ़ते हो तो बड़े कंपनी में आपको मालूम चल जाता है कि अलग अलग वर्टिकल्स क्या कर रहे हैं. Especially I think for bigger companies like pharma के लिए this is one thing which I really use a lot. तो ये चीजें हैं. So I hope I haven't missed anything जितना मैं सीखा था. But to summarize I think आपने पौने 1 घंटे में इतना कुछ सिखा दिया मुझे that अगर कोई नहीं यूज करेगा स्क्रीनर इंडिया में I think वो सबसे बड़ा बेवकूफ होगा if they are tracking stock market. So anyone and everyone who is tracking markets, please use. It's a free tool. It's a free tool, and it will give you so much of empowerment in terms of financial taking the right financial decision. I can't even tell you that. Thank you, sir. Thank you for explaining it so well. Thank you. Ayush bhai, Pratish bhai, thank you so much, both of you, and I await to learn more from both of you in the second episode of the advanced features of screener. But this is just amazing. मुझे बहुत मजा आया. आज मेरे लिए ऐसा दिन था जैसे अपर सेकंड लग गया. तो इतना मजा आया मुझे आपके साथ सीखने में. And it's a great tool. मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल रहा हूँ. It's really wonderful thing what both of you have done. आयुष भाई अपने को थोड़ा जल्दी प्लान करना पड़ेगा सेकंड की. ऐसा ना हो सेकंड शुरू होने से पहले प्रतीश भाई पापा जी बन जाए, फिर प्रतीश भाई थोड़ा सा बिजी हो जाएंगे ज्यादा. नहीं सर वो तो शायद होना है क्योंकि it is due within this week or next week. So अच्छा सर, थैंक यू सो मच. विल कैच वेरी सून. ओके, एंड थैंक यू वेरी मच. ओके, बोथ ऑफ यू. मजा आ गया. Okay, thank you. थैंक यू.